ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ یہ کون ہے؟ جی یہ کون ہے؟ ہلو جی آپ کون ہیں؟ جی بھائی میرا نام محمد ارشد رضا ہے۔ جی محمد ارشد رضا نام ہے میرا بھائی۔ مفتی ہیں، مولوی ہیں، قاری ہیں؟ جی میں نہ مفتی ہوں میں نہ عالم ہوں۔ جی تو تو ایک جو آپ سے بات کر رہے تھے تو آپ ذرا سے غصے میں لگ رہے ہیں، ایسا کیوں؟ نہیں جناب، بد کلامی انہوں نے کی ہے۔ اچھا کس نے کی بد کلامی؟ ہم نے تو کچھ بد کلامی کی نہیں، جب وہ لہجہ بدل کے بات کی تبھی ہم کچھ بولے ہیں۔ اچھا چلیے کوئی بات نہیں۔ آپ میرے کہنے کا دین اسلام میں نہ کوئی زور ہے نہ کوئی زبردستی ہے۔ جی جی بالکل 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 درست۔ جس کو مان رہا ہے اس کو مانے گا۔ جی جی بالکل صحیح، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ سنیے، محبت سے کسی کو انسان بنا سکتا ہے، جو زبردستی نہیں۔ نہیں بالکل صحیح بات ہے، آپ نے درست فرمایا۔ ہاں تو بس نہیں جناب، اصل میں کیا ہے، ہمارے جو بھائی ہیں تھوڑے سے ان کی بات کا برا مت مانیے کریے آپ، جیسے کہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی انسان میں بات کرنے میں لہجے میں ذرا سا تنگی آ جاتی ہے۔ کل سے ان سے بات ہو رہی ہے، کل سے بڑے اچھے سے بات کر رہے تھے، وہ آج لہجہ بدل کے بات کی ہے۔ اچھا چلیے کوئی بات نہیں، میں ان کی طرف سے معذرت آپ سے کرتا ہوں۔ جی بولیے۔ یہ آپ کا نام کیا ہے؟ جی ہمارا نام شاکر علی ہے۔ جی شاکر علی۔ شاکر علی ہے آپ کا بھائی، کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ یو پی کہاں سے؟ بنارس سے۔ اچھا بنارس کے، آپ تو ہم سے دور ہیں مگر ذرا سے۔ ہاں دور تو ہیں۔ آپ یو پی کے ہیں، بنارس کے ہیں، ہم ضلع بہرائچ کے ہیں۔ اچھا اچھا جی 500 کلومیٹر کا سفر ہے آپ کا ہمارا۔ ہاں جی لکھنؤ ہمارے طرف سے قریب پڑتا ہے۔ اچھا اچھا جی آپ کے لکھنؤ میں کوئی رشتے دار رہتے ہیں؟ ہاں خاندان تو رہتی ہے لیکن اتنا آنا جانا نہیں رہتا ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں۔ اچھا جیسے کہ یہ آپ نے بتایا کہ آپ پہلے آپ جو ہے آپ شیعہ میں سے تعلق رکھتے ہیں، شیعہ آپ شیعہ ہیں نا؟ ہاں بولیے۔ جی جیسے کہ آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک صاحبزادی تھی، بقیہ 4 صاحبزادی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں تھی، تو اس کے پاس آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ جو ان کی شہزادیاں تھی یہ ان کی نہیں تھی، یہ ان کی بہن ان کی تھی۔ ارے کیسے نام ہے ان کا، دیکھیے نام تو ابھی فی الحال نہیں یاد آ رہا ہے۔ وہ ان کی نہیں تھی، وہ پالنے کے لیے لائی تھی خدیجہ الکبریٰ۔ اچھا میں آپ کو ایک بار بتا دوں، آپ نے اپنے علماء کی کتاب پڑھی جو آپ کی اصول اربعہ ہے، آپ نے پڑھی ہے؟ من لا یعذر الفقی الاصول من القافی الاستبصار، اور آپ کی جو کتاب ہے تو اس میں یہ بات واضح طور پر ملا باقر مجلسی کا نام کھلا جنہوں نے بہار الانوار لکھی ہے۔ ہاں سنا ہے۔ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے حیات القلوب۔ جی حیات القلوب کے اندر میں آپ کو بتا دیتا طریقے کار ہے آپ کو، یہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک ہی بیٹیاں تھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا تھی سلام اللہ علیہا تھیں، اور بقیہ بیٹی تھی وہ کسی اور کی تھی، حضرت خدیجہ نے پالا تھا، یا اور کسی کی وہ آپ کی جو بیٹی نہیں تھی۔ تو آپ حیات القلوب میں خود جو ہے ملا باقر مجلسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 872 پر لکھتے ہیں، پورا واقعہ لکھتے ہیں، اس میں پورا 872 پہ لکھتے ہیں۔ تو جناب تو اس مسلک پہ تو ہم بات ہی نہیں کر رہے تھے ابھی، تو مسلک پہ بات نہیں کر رہے تھے، آپ نے شہر آتوب کے حوالے سے اور یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹیاں تھیں حضرت فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ، طاہر پیدا ہوئے، اور ان کا حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے صاحبزادے تھے۔ اس کو شہر آتوب نے بھی اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ 25 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہوا تھا۔ کن کی عمر میں؟ 25 کی عمر میں۔ جیسے کہ آپ کی جو سنو آپ کی الاصول من القافی، الاصول من القافی کے اندر امام جعفر صادق سے جو روایت مروی ہے، امام جعفر صادق سے جو روایت مروی ہے اس میں یہ بات آتا ہے کہ آپ کی عمر جو 22.5 اور 22 سال کے آس پاس تھی۔ چلیے 22 بھی مان لیجیے۔ جی اور سنیے اس کے بعد جو ہے کیا نام ہے، آپ کے حیات القلوب ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں، وہ لگ بھگ 21 اور 25 کو ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا اور ہمارے اہل سنت والجماعت کی تاریخ اور سیرت کی کتب میں یہ آتا ہے کہ آپ کی 24 اور 25 سال، مگر راجح اور مقبول قول یہی ہے کہ آپ کی 25 سال عمر تھی۔ چلیے زیادہ اتفاق نہیں ہے جی، مطلب زیادہ فرق نہیں ہے دونوں لوگوں میں۔ نہیں جیسے آپ لوگ یہ کہتے ہیں نا، آپ لوگ فوراً بتاتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ
की थी। और आयत मुबाहिला में जब आयत मुबाहिला नाजिल हुई 9 हिजरी में, तो हजरत आका अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा को लिया, वानफुसाना वानफुसकुम वानफुसाकुम वाबनाना वाबनाकुम वानफुसाना वानफुसाकुम के मातहत तुम अपनी जो औलादों को लेके आओ, अपनी बेटियों को लेकर आओ, अपने नफ्स को लेकर आओ। तो आका अलैहिस्सलाम की अगर 4 बेटियां होती तो अब जो है मुबाहिले के वक्त आका अलैहिस्सलाम जो है उम्मे कुलसुम और रुकैया को आते। हालांकि आपके मुल्ला बाकर मजलिसी ने ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी है कि हजरत आका अलैहिस्सलाम की जो 2 बेटियां थी, हजरत कुलसुम और रुकैया, रुकैया और कुलसुम, और 8 हिजरी में हजरत ज़ैनब का इंतकाल, उम्मे कुलसुम का इंतकाल हुआ है आयत मुबाहिला से एक साल पहले। और हमारी जो मोतबर किताब है सीरत की, क्या नाम उसकी किताब का नाम है सीरत हलबिया में, अहले बैत मौला अली को हुक्म होता है कि आप जो अहले बैत जो फतेह मक्का के वक्त में आका अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना आए थे, तो मौला अली को हुक्म हुआ था कि आप सारी अहले बैत को आप मदीना मुनव्वरा लेके आए। अच्छा रहिए जनाब जी, इस बात की तहजीद आप करेंगे कुरान से? क्या तहजीद करेंगे? इस बात को मिलाएंगे कुरान से? इस बात की नहीं, मुल्ला बाकर मजलिसी आपके कौन है मालूम है? बहुत मोतबर और बड़े मायनात किताब है जनाब। क्या है आपके मुल्ला चाहे हमारे मुल्ला हो, हम तो मानेंगे उसी हदीस को, उसी किताब को जो नहीं। तो आपके जो मुल्ला साहब हदीस का ही बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं शेर आसोब के, जो आपको शेर आसोब उन जो बहुत बड़े आलिम है जिनके मनाकिब अली इब्न अबी तालिब मोतबर जैसी किताब लिखी है, ठीक, 4 मासूमीन और दीगर किताबें आपसे जो मरवियात हैं। और सुनिए, ये भी यहाँ तक नहीं, मैं आपको उसूल अरबा से आपकी हदीस की किताब से जो दूंगा, जो इमाम अहले बैत से आई है, अल इस्तिबसार से दूंगा, और अल उसूल मिनल काफी के बाब से आपको दूंगा कि उम्मे कुलसुम और हजरत रुकैया ज़ैनब आपकी बेटियां थी, ना कि आपकी पाली भी शख्सियत थी। अच्छा सुनिए, क्या थी जी? खुद की औलाद थी जी, हकीकी औलाद थी। ये आपके खुद जो है इमाम जाफर सादिक जो उसके अंदर खुद फरमाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन भेज दूँ इनके साथ, मैं आपको फोटो कापी भेज दूँ, हदीस नंबर भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, आपको जो गलत खबर दी गई कि हम लोग खाली जो है ऐसे ही खाली बात किया करते हैं और हमारे पास कोई दलील नहीं होती है। अच्छा, ये सुनिए, आपकी जो किताब है ना अल उसूल मिनल काफी, अल उसूल मिनल काफी का जो बाब तारीख है, और जो है अल इस्तिबसार का हदीस नंबर मैं आपको बता देता हूँ, उसको भी आप नोट फरमा लीजिए। अगर आपको शक हो तो मैं भेज देता हूँ, उसको आप जो है भेज कर लीजिए, अपने उलमाओं को उसको दिखा लीजिए। अच्छा, भेज दीजिए जी जी जी, अपने उलमाओं को आप दिखा लीजिए, उसमें बताएंगे। ये हदीस नंबर है 8181 का नंबर हदीस ही है। हाँ, किताब का नाम भी बता दीजिए। अल इस्तिबसार। क्या? अल इस्तिबसार। अच्छा, अल इस्तिबसार अल उसूल मिनल काफी। इसी में लिखा है कि मतलब कि 4 बेटियां नबी की थी। नबी की 4 बेटियां, तो उम्मे कुलसुम, रुकैया, ज़ैनब, हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, वो भी हम लोग में बताया गया हजरत आका अलैहि ऐलान नबूवत से 1 साल पहले पैदा हुए थे। अच्छा, ये बताइए, जब मैदान मोबाइल में जाना था तो ये लोग फौत हो चुकी थी? जी जी बिल्कुल, आपके खुद जो है खुद हमारी तवारीख में, आपकी भी तारीख की किताब में और सीरत की किताब में बात मौजूद है। आपके मुल्ला बाकर मजलिसी भी खुद लिखते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की तीनों बेटियां फौत हो गई थी। और हजरत हम मान लेते हैं आपकी बात की फौत हो गई थी जी। तो ये बताइए जी, नबी के घर में और भी तो औरतें थी? और भी औरतें थी, जैसे कौन? और भी तो थी। और भी औरतें थी, उससे क्या लेना देना? जैसे आप लोग उससे नहीं लेना देना कि औरतें थी, आका अलैहिस्सलाम की बीवियां भी थी। आका अलैहिस्सलाम, आप मेरा बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। जी, आप खोल के बताइए। उनके घर में और भी औरतें थी, उनके घर में और भी मर्द थे। नहीं, तो उनके पास ये तो नबी की तखसीस है ना, नबी जिसे चाहे चुन लेना। नबी अलैहिस्सलाम की तखसीस चुनी हुई चीजें की, जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अना मदीनतुल इल्म अली व बाबुहा, अन्ना मिन्नी बेमंजिलत हारून में मूसा इल्ला अन्हु ना नबी आबादी। हाँ, और फरमाते अना व अली नूर में वाहिदन। फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते मन कुन्तु मौला फहाज अली मौला। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम की तखसीस में जिसे चाहे आप बुलंद फरमा दे, तो जिसे चाहे भी आप अता फरमा दे। तो नबी का ये चुनना है, वान फुसाना वान फुसाकुम वा बनाना वा बनाकुम। तो ये जब ये ऐलान हुआ था तो सारे सहाबा इकराम कह रहे थे कि कल सुबह मैं भी मैदान मुबाहिला में चलूंगा। सारे सहाबा इकराम कह रहे थे कि मैं भी मैदान मुबाहिला में कल सुबह चलूंगा। जी, आप फरमाते जाइए।
जब सारे लोगों ने ये कहा तो अल्लाह के नबी ने जब ये बात सुनी सारे लोगों की, तो अल्लाह के नबी ने ये फरमाया कि चलो मैं किसी को मना नहीं करता, जिसका मन करे वो चलो, लेकिन एक बात को ध्यान में रख के चलना, कल सुबह मैदान मुबाइला से जिंदा लौट के वही वापस आएगा जो माँ की गोद से लेके कब्र की रात तक कभी झूठ ना बोला हो। तो कौन ऐसा सहाबी है कि जो कलमा पढ़ने से पहले झूठ ना बोला हो? कोई ऐसा एक सहाबी बताइए हमको। जैसे कि ये जो आप रिवायत बता रहे हैं, ये अभी तक हमारी नजरों से ऐसी नहीं गुजरी, हमारी मोतबर किताबों में से। एक बार सुनिए। और रही बात जो आप ये बात पता है, इसको अकल भी कबूल करती है, अकल भी उसको जो है ना नहीं करती। हाँ, जो मौला कायनात का जो मकाम है वो मुनफरिद तौर पर है, ठीक है, इसमें कोई मुशाबे नहीं है। अव्वल बात, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की अहले बैत है और आका अलैहिस्सलाम ने उनको अहले बैत में दाखिल फरमाया। उसे हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह को आपकी जोजा बनाया है और आपके जो है आप भाई भी लगते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली तुम कयामत और दुनिया में मेरे भाई हो, ठीक है। तो हजरत अली का जो मिसाल है कराबत में, वो किसी के साथ नहीं खा सकते। तो जनाब मैं यही तो कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सबके हैं। आप जलियत के मकाम पर सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। जब वो कलाम पाक की एक आयत आई थी और या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। ये बताइए जी, यहाँ पे तर्जुमा सारे अहले सुन्नत के लोग कहते हैं जी, कहते हैं ना, आए ईमान वालो अल्लाह से डरो, कहते हैं जी, मैं सुन रहा आप जो इसका तर्जुमा यही कि लोग जी, आए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ जी। तो ये बताइए, जब वो लोग ये आयत पहले नाजिल हुई थी कि बाद में नाजिल हुई थी ईमान पहले लोगों को? आप बोलते गए, मैं सुन रहा हूँ। अल्लाह के नबी जितने सारे थे ईमान ला चुके थे कि नहीं लाए थे? जरूर ला चुके थे ना जी। तो जब वो लाए हैं तो वो रजी अल्लाह हुए जी। और जब ये आए, जब ये लोग पहले से ईमान ला चुके थे, तो फिर अल्लाह को ये कहने अल्लाह को मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए जी। कि जो आप जिस ट्रेंड पे जाना चाह रहे हैं इसको फिलहाल आप एक मुख्तसर वक्त के लिए खास कर लीजिए। इसके ऊपर अच्छे से हमारी आपकी बैठ के मोबाइल पे अच्छे अंदाज में गुफ्तगू होगी। फिलहाल के वक्त में जो आपने जी, आप जो फिलहाल के लिए जो आपने इसको जो है थोड़ी देर के लिए मुनक़ते वक्त निकालिए और इंशाल्लाह इसके ऊपर अच्छे से तफसील के साथ गुफ्तगू होगी। अलबत्ता जो मैंने आपको बताया है वो अपने मोतबर उलमा की बारगाह में जाइए। जो आपके उलमा जो सोचा डालते हैं ना कि ऐसा नहीं है ऐसा, इसको बारे में पूछिए। मैंने आपको कई किताब के हवाले दिए हैं। हाँ चलिए, वो तो हम करवा लेंगे। नहीं करवा लेंगे, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर बता दें, आपको जहमत करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वो उर्दू का साथ साथ अरबी और फारसी के अंदर भी वो मखतूता मैं आपको देता हूँ, उसको फरमाया। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप भेज दीजिएगा। जी ठीक है। मगर जो आप लोग ये जो गलत जो शोशा अवामुन नास में फैलाए हुए हैं कि आपको अपनी किताब के अंदर खुद इसके बारे में जानकारी नहीं है, खुद शेर आसोब ने और मुल्ला बकर मजलिसी ने इसको अपनी हयातुल कुलूब के अंदर नकल फरमाया। अच्छा ठीक है, इस बात को पहले हम तहकीक करेंगे। तहकीक भी कर लीजिए। उन्होंने जो है जो एतराज करने वाले हैं उनको उसका जवाब भी दिया है जी, उसको भी आप पढ़िएगा। मैं सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 2 में 2 जिल्दों पर मुश्तमिल किताब, ये फारसी में अभी लखनऊ से इसका तर्जुमा शाया हुआ है। अच्छा ठीक है। अब एक बात को और वाज़ेह कर दीजिए जी कि आप ये तीनों को तो आप मानते? इनको अरे अबू बकर को, उस्मान को और इनको उमर फारूक को। जी तीनों को आप मानते हैं? तो बेशक क्यों नहीं मानता हूँ। तो ये बताइए जी, आप हजरत ये आप माविया को भी मानते होंगे? बेशक मानता हूँ। मानते हैं। तो आप बताइए माविया क्या था? देखिए, अच्छा आप ये बताइए, आपके तो उलमाओं ने, मेरी बात सुनिए, आपके मोतबर उलमाओं ने तारीख जो क्या नाम है अल एहतिजाज, इमाम तबरसी की किताब है, इमाम तबरसी ने तारीख की किताब लिखी है, उसमें तो उन्होंने ये बात वाज़ेह लिखा है और तारीख की दीगर किताब में उनको सहाबी माना गया है। उनको ये तो आप भी मानते होंगे, शायद आप जानते हैं कि वो सहाबी थे।
रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को देखा, आपकी सोबत में रहे। एक थे तभी तो मुनाफिक साबित होंगे। नहीं, सुनिए, देखिए आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनते नहीं है, उसके बाद जो है आप सुनाइए जी, आप मेरी बात सुनते नहीं है, उसके बाद जवाब देने। ये सहाबी तो थे, तो सहाबी थे। देखिए हमारे उलमा कहते हैं जो किसी सहाबी की शान में गुस्ताखी करे वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। हाँ ठीक है, एक बात। मगर जैसे कि जो हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जो खता हुई इस्तिहादी के तौर पर, ठीक है, जो हुजूर मौला कायनात के जो है बारगाह में उन्होंने खुरूज फरमाया था, ये इसको हम भी लोग गलत कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया था, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल-महदी, मेरी तुम पर सुन्नत और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत, और अली माल कुरान वल कुरान माल अली, अली माल हक वल हक माल अली। ये हदीस है पूरी कि अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। ठीक है, तो अली के हजरत अली के साथ खुरूज करना, ये कुरान के साथ खुरूज करना था, उनसे वो गलती हुई थी इत्तेहादी के तौर पर। तो इसको हम ये ना और भी जो कुछ मसले मसाइल है जो तारीख की किताब के अंदर आती है, उसको मैं इंशाल्लाह मैं आपकी बारगाह में पेश करूंगा, मगर वो खुले वक्त में दोनों गुफ्तगू आपसे होगी। अच्छा ठीक है, ये दोनों गुफ्तगू मतलब जो है अच्छे अंदाज में और जामे अंदाज में मुख्तसर वक्त लेके होगी इंशाल्लाह, जब आप बताएंगे वक्त में। मगर इनको आपके उलमाओं ने भी सहाबी माना है, अब उनसे सहाबियत से कुछ भी गलती हुई, हुजूर मौला कायनात के खिलाफ आपने खुरूज फरमाया है का और दीगर चीज भी जो आई है, इसके ऊपर आप भी आमादा है, हम भी आमादा है। आप भी मानते सहाबी, और हम लोगों का कहना किसी सहाबी जो है वो उसके बारे में लान तान करना ये दुरुस्त नहीं है। और हमारी जो सूफियत की किताब में ये बात वाज़ेह तौर पर आई है, आका अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया और दीगर बुजुर्ग किसी रिवायत किसी सहाबी के बारे में इस तरह के अल्फाज नहीं, जो उन्होंने किया वो उसका अल्लाह रसूल फैसल जानेगा। और इसके बारे में खुद जो है नहजुल बलागा, जो आपकी जो नहजुल बलागा है उसके अंदर, आपकी जो इनकी शरह हुई है, शरह इब्न हादीत अल-मुतज़ली की शरह नहजुल बलागा में, और नहजुल बलागा में खुतबा इमाम जो है अली का मौजूद, उसके अंदर मौजूद है। खुद जो है हजरत अली के जो है शियाओं ने कहा, आपसे मोहब्बत करने वाले ने कहा, फरमाया कि अली आप जो है शामियों के बारे में आप क्यों नहीं कहते हैं? तो आपने फरमाया कि नहीं, शामियों के बारे में लान तान ना की जाए, मुझे उसी तरह खिलाफत, उसी तरफ जो उनको मुझे खिलाफत अता फरमाई है जैसे अबू बकर और उमर को, मतलब सहाबी नबूवत के दर्जे पर सहाबी के इजमा के अंदर में खिलाफत बनाओ, उनके बारे में लात मान मत करो, वो अल्लाह रसूल उनके ऊपर फैसला करेगा। खुद मौला अली ने जो है नहजुल बलागा में खुतबा मौजूद है, हजरत अली ने जो है लान तान करने से मना फरमाया। जी ये बताइए कि आपकी मोतबर किताब है नहजुल बलागा। हाँ चलिए हम बात मान लेते हैं। तो ये बताइए कि जब ये मौला अली जो आप फरमाते हैं अमीर मुआविया को हजरत मौला कायनात से कौल मरवी नहीं है, और हजरत मौला कायनात ने खुद फरमाया था कि शामियों के ऊपर लान तान न किया जाए, उनको बुरा भला न कहा जाए। अच्छा, बात नहजुल बलागा के खुतबा के अंदर भी मौजूद है। तो फिर जनाब आप मेरी किताब दिखा रहे हैं, तो फिर आपकी किताब से भी तो हमको साबित करेंगे। जी आप साबित करिए, आपको जो एतराज है वो रखिए, मुख्तसर अंदाज में बोल दीजिए, हमारी आपकी गुफ्तगू तूल हो जाएगी, और उसके बाद आप वक्त दीजिएगा, इंशाल्लाह इसके ऊपर बैठ के कम से कम आधे या पौन घंटे तक गुफ्तगू हमारी दोनों मसले पर होगी। रुकिए 1 मिनट लीजिएगा। जी